गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। आज हम थर्ड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 2 लेक्चर बनाए हैं, 2 लेक्चर सीरीज है, जिसमें हमने पहले लेक्चर्स में बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया था, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में, स्पेशल ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के। और सेकंड लेक्चर में हमने लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी किया, और आज हम स्टडी करेंगे थर्ड लेक्चर, दैट इज inverse Lorentz transformation equation. Now the basic difference between inverse Lorentz transformation and Lorentz transformation is that in Lorentz transformation the prime, that is dash equations, derived in the form of undash equation. Here in inverse Lorentz transformation the undash system, that is x in term of x dash, y in term of y dash, z in term of z dash, or t in term of t dash. We will study the 4 Lorentz transformation equation in this lecture. So now we start. Inverse Lorentz transformation is inverse Lorentz transformation. Inverse Lorentz, मैं यहाँ पर पहले Lorentz की इक्वेशन लिख देता हूँ, 4 Lorentz transformation equation. The first equation is x dash is equal to x minus vt upon under root 1 minus v square upon c square. Y dash बराबर y, z dash बराबर z, and t dash बराबर t minus x v upon c square upon under root 1 minus v square upon c square. So these are 4 Lorentz transformation equation. X dash in term of x, y dash in term of y, z dash in term of z, or t dash in term of t. T dash represent the time component in h dash frame of reference. Similarly, y, z dash, and x dash. So in inverse Lorentz transformation, the result should be x in term of x dash, y in term of y dash, z in term of z dash, and t in term of t dash. Is it clear? Now we start. So there are 2 frame of reference, S and O, O dash, S dash, or S. This is X, X dash, Y dash, Z dash, Z, or Y, and it moves with velocity v with respect to S along positive x direction. एक्चुअली ये डेरिवेशन बिल्कुल सेम रहेंगे जैसे ये है, बस इसमें डिफरेंस ये है, जब भी इन्वर्स की बात होगी तो आपको ये प्राइम को मतलब डैश सिस्टम को अनडैश में लाना है. दैट इज एज वी नो एक्स डैश इज इक्वल टू गामा एक्स माइनस वी टी. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एज इन Lorentz transformation, and x is equal to gamma x plus v t dash. Equation 2, it is in term of s dash, or it is s. Now to find out the value of gamma, multiply equation first or 2. We have, sorry, before using after using second postulate. Now using second postulate, same as in Lorentz transformation. Second postulate that x is equal to ct and x dash is equal to ct dash. So what will be ct dash is equal to gamma ct minus vt, and ct is equal to gamma ct dash plus vt dash. Equation 3 and 4. Now to obtain the value of gamma, multiply 3 and 4. 3 4 की मल्टीप्लाई किया आपने, तो क्या आ गया बेटा, सी स्क्वायर टी टी डैश इज इक्वल टू गामा स्क्वायर टी टी डैश और सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर. टी टी डैश कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से गामा स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर. तो सी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ये बचेगा. तो गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन 5. नाउ दिस वैल्यू ऑफ गामा
If substitute in equation first, then we have x dash is equal to x minus vt upon under root 1 minus v square over c square. So this is Lorentz transformation equation. And similarly similarly t dash. और ये हम पढ़ चुके हैं कहाँ पर है, Lorentz ट्रांसफॉर्मेशन में. टुडेज टॉपिक इज इनवर्स Lorentz ट्रांसफॉर्मेशन. तो ये वैल्यू आपको कहाँ पुट करनी है, सेकंड इक्वेशन में. तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड अब हम इसको दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे. और देखिए सेकंड इक्वेशन से क्या आ जाएगा. फ्रॉम इक्वेशन सेकंड x इज इक्वल टू x डैश प्लस वी टी डैश अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. तो दिस इज फर्स्ट इनवर्स Lorentz ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन. फर्स्ट इनवर्स Lorentz ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन. ये है पहली इनवर्स Lorentz ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन. क्या डिफरेंस है, वहां पर क्या था, x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी, यहाँ पर क्या है, x इज इक्वल टू x डैश प्लस वी टी डैश. और ये फैक्टर सेम है दोनों में. डिनोमिनेटर्स जो है अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. तो वन थिंग इज रिमेंबर दैट द अनडैश सिस्टम इज लेफ्ट साइड एंड द डैश सिस्टम इज राइट साइड. अगर आपने गलती से डैश इधर आ गया तो ये सब इक्वेशंस गलत हो जाएंगे. तो यू शुड रिमेंबर दैट. नाउ सेकंड इक्वेशन y इन टर्म ऑफ y डैश देयर इज नो चेंजेस. ये क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हमारा जो फ्रेम है वो x एक्स के लॉन्ग मूव कर रहा है. एंड सेम z इज इक्वल टू डिनोमिनेटर्स जो है अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. तो वन थिंग इज रिमेंबर दैट द अनडैश सिस्टम इज लेफ्ट साइड एंड द डैश सिस्टम इज राइट साइड. अगर आपने गलती से डैश इधर आ गया तो ये सब इक्वेशंस गलत हो जाएंगे. तो यू शुड रिमेंबर दैट. नाउ सेकंड इक्वेशन y इन टर्म ऑफ y डैश देयर इज नो चेंजेस. ये क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हमारा जो फ्रेम है वो x एक्स के लॉन्ग मूव कर रहा है. एंड सेम z इज इक्वल टू z डैश. दिस इज थर्ड. ये तीसरी इक्वेशन है Lorentz की इनवर्स की, ये दूसरी है. अब क्वेश्चन आता है फिर फोर्थ इक्वेशन का, दैट इज टाइम इन टर्म ऑफ एंड डैश सिस्टम. अब निकालना है मुझे t, इसमें डैश में. तो t निकालने के लिए देखिए आप कौन सी इक्वेशन का यूज करेंगे. यहाँ से t किस में है, इक्वेशन फर्स्ट में. तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट. पहली इक्वेशन क्या है बेटा, ये देखिए x डैश इज इक्वल टू x डैश इज इक्वल टू, ये गामा मैंने डिवाइड कर दिया है, x माइनस वी टी. ये पहली इक्वेशन है. मुझे यहाँ से t फ्री करना है और यूज करना है. देखिए ये अनडैश सिस्टम है और मुझे t किस में चाहिए, कंप्लीटली डैश सिस्टम में. कंप्लीटली डैश सिस्टम को इसका मतलब आपको x भी रिमूव करना पड़ेगा यहाँ से. किस फॉर्म में, x डैश में. x किस में लेना पड़ेगा, x किस में लेना पड़ेगा आपको, डैश में. तो यूजिंग इक्वेशन सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा, x डैश अपॉन गामा इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू कितना है, गामा x डैश प्लस वी टी डैश और माइनस वी टी. ये आ गया. अब आपको क्या करना है, सिंपली इसको सोल्व करना है, मैथमेटिकली सोल्व करना है और सिंपल वैल्यू निकालनी है t की. एंड फाइनली सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ गामा. एंड आफ्टर सोल्व इट वी हैव द वैल्यू ऑफ t इन टर्म ऑफ t डैश. देखिए कैसे सोल्व करें. इसको फ्री कर रहा हूं मैं और v से डिवाइड कर रहा हूं. इसको इधर ले जा रहा हूं, उसको उधर. तो ये कितना हो गया, t इज इक्वल टू, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको t को इधर ला रहा हूं, इसको इधर ले जा रहा हूं. तो ये आ जाएगा x डैश गामा अपॉन v. इसके कर दिया प्लस, ये क्या हुआ, गामा की मल्टीप्लाई यहाँ होगी और v से डिवाइड होगा तो v कट जाएगा, गामा t डैश. इज इट क्लियर. नाउ ये इधर गया और ये चला माइनस, क्या हो गया, x डैश अपॉन गामा और डिवाइड किससे किया आपने, v से. यस, ये आ गया. नाउ अब इसको सोल्व कर रहा हूं. फाइनली ये सोल्व करना है बस आपको और फाइनली इक्वेशन निकल जाएगी. तो आफ्टर सोल्विंग दिस इक्वेशन t बिकम्स, अब देखिए इससे और इससे आप कॉमन ले लीजिए. क्या कॉमन आ जाएगा,
एक्स डैश गामा अपॉन वी, ये पूरा कॉमन ले लिया बेटा मैंने, तो क्या बचा 1 माइनस गामा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, और 1 अपॉन गामा स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज होगा। ये देखिए कंप्लीट, मैंने क्या किया, ये पूरा फैक्टर कॉमन ले लिया इससे और इससे, एक्स डैश गामा अपॉन वी, तो यहाँ 1 बचता है और गामा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेगी तो वहां बचता है 1 माइनस गामा स्क्वायर प्लस गामा टी, ये बच गया गामा टी। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू किसकी, गामा की। तो गामा कितना है, गामा आपको पता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, फ्रॉम इक्वेशन फिक्स, फ्रॉम इक्वेशन फिक्स, पांचवी इक्वेशन से। तो ये कितना आ गया, टी डैश टी इज इक्वल टू एक्स डैश अपॉन वी, और गामा की वैल्यू रख रहा हूं मैं यहां पर कितनी, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 अपॉन, इस गामा की वैल्यू रख दो 1 अपॉन अंडर रूट, फिर ये ऊपर चला जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। देखिए गामा की वैल्यू है तो 1 अपॉन गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट हट गया यहां से और बाहर माइनस था इसलिए प्लस हो गया, और प्लस टी अपॉन बोलो अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यस ये आ गया। नेक्स्ट टी, देखिए अब इसको सोल्व कर लीजिए, इससे और इससे ये 1 कट गया, ये v भी कट जाएगा आपका, और ये कॉमन आ गया, और वो एलसीएम आ गया सॉरी 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये पूरा एलसीएम आ गया। तो एक तो बचता है एक साइड t और दूसरी साइड बचता है प्लस एक्स डैश, और ये बचा हुआ है यहाँ पर एक v बचा हुआ है, और सी स्क्वायर एज इट इज है। तो दिस इज फोर्थ LP इक्वेशन। तो दीज आर 4 इनवर्स लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अगेन देखिए आप टी डैश पहली ये निकाली आपने, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। यहाँ एक डिफरेंस है, फिर मैं आपको बता रहा हूं व्हाट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन Lorentz and inverse Lorentz transformation. There is undash system, that means time in S frame of reference is equal to t plus x dash v upon c square under root 1 minus v square over c square, and same x is equal to x dash plus vt upon under root 1 minus v square, or the second and third remains same equation in both frame of reference. So there is a single difference is that unprime to prime, ये t dash है, ये हाँ ये सॉरी ये टी डैश देखो हमारा यहाँ छुटा हुआ था, यहाँ गामा टी डैश था, हमने यहाँ गामा टी लिख दिया था, तो ये डैश हमारा रह गया था यहाँ पर, और ये डैश होगा और ये भी डैश होगा, क्योंकि देखो दोनों तरफ क्या आ रहा था, अनप्राइम नंबर आ रहा था, इट मींस ये गलत है, तो ये हो गया डैश। तो फाइनली फोर्थ इक्वेशन इज टी इज इक्वल टू टी डैश प्लस एक्स डैश वी अपॉन सी स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो दीज आर 4 inverse Lorentz transformation equation. Now in the next lectures we will discuss the applications of Lorentz and inverse Lorentz transformation. Thank you.